اس نے 2-3 مرتبہ کرنل بھاٹیہ کو مخاطب کرنا چاہا، لیکن کرنل بھاٹیہ تو اس وقت ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس نے کیپٹن کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ناچنے والی کی حالت بھی کرنل بھاٹیہ سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ کیپٹن کچھ چڑ سا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کرنل بھاٹیہ کا کندھا تھپ تھپا کر اسے اپنی طرف مخاطب کیا۔ نوجوان کیپٹن کی اس حرکت پر کرنل بھاٹیہ نے اس کی طرف پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے مغلزات کا طوفان انڈلے، نوجوان کیپٹن جو اتفاق سے نشے کی حالت میں نہیں تھا فوراً گویا ہوا۔ ایمرجنسی سر۔ واٹ؟ کرنل نے قدرے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ آرکیسٹرا اب پورے زور و شور سے دھنیں بکھیرنے لگا تھا۔ نوجوان کیپٹن کو نہ جانے میجر سود نے صورتحال کی سنگینی کا کتنا زیادہ احساس دلا دیا تھا کہ اس نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر اپنا منہ اس کے کان کے نزدیک لے جا کر کہا، سر بٹواری کیمپ سے ایمرجنسی میسج ہے، میجر سود آن لائن۔ کرنل بھاٹیہ کو زوردار جھٹکا لگا۔ کم آن، اس نے نوجوان کیپٹن کو باہر آنے کے لیے کہا، اور کیپٹن کے تعاقب میں چلتا وہ دوسرے ہی لمحے حال سے باہر تھا۔ دس وے سر۔ کیپٹن نے وائرلیس روم کی طرف اشارہ کیا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر کی دوسری منزل پر واقع وائرلیس روم تک سیڑھیاں اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے طے کی تھیں، اور اب دونوں ایک کمرے میں کھڑے تھے۔ بٹواری کیمپ میں لاؤ۔ وائرلیس آپریٹر کو نوجوان کیپٹن نے ہدایت کی، جو انہیں دیکھتے ہی احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ یس سر کہہ کر آپریٹر نے اگلے ہی لمحے لائن ملا دی۔ دوسری طرف میجر سود بھی بے چینی سے اس کال کا منتظر تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بٹواری کیمپ میں گزرنے والی قیامت سے اسے مختصراً آگاہ کرتے ہوئے اگلی ہدایت طلب کی۔ ڈیم اٹ! کرنل بھاٹیہ اتنی زور سے فون پر چلایا کہ کیپٹن اور آپریٹر سہم کر رہ گئے۔ دوسری طرف میجر سود کی بھی شاید یہی حالت ہوئی ہوگی، لیکن اس کا خون ایک لمحے کے لیے ضرور کرنل بھاٹیہ کے اس لہجے پر کھول اٹھا۔ اس صورتحال کا ذمہ دار وہ نہیں تھا، اسے تو ڈیوٹی سنبھالے بمشکل 4-5 دن ہوئے تھے۔ اگر یہاں تخریب کار کیمپ میں بھی دشمن انٹیلیجنس کی کوئی تخریب کاری ہو رہی تھی تو اس کا ذمہ دار وہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ ذمہ داری کرنل بھاٹیہ پر عائد ہوتی تھی، یا پھر میجر چوہان پر، جس سے اس نے چارج لیا تھا۔ 3-4 دن میں تو یہ سب کچھ ہونے سے رہا۔ بٹواری کیمپ کی تباہی کی خبر نے کرنل بھاٹیہ کا سارا نشہ حیران کر دیا تھا، اور وہ قدرے پریشان بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ شاید اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے میجر سود کو بے خبری میں ڈانٹ پلا دی ہے، جو خود میجر جنرل کا داماد تھا اور سینیورٹی میں بھی تقریباً اس کے برابر ہی تھا۔ اگلے 2-3 ماہ وہ لیفٹیننٹ کرنل بننے والا تھا۔ بیک وقت کئی سوچیں اس کے دماغ میں جنم لے رہی تھیں، جو اب بیدار ہو چکا تھا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے مختصر سا پیغام دے کر کریڈل نیچے رکھ دیا۔ اینی پرابلم سر؟ نہ چاہتے ہوئے بھی نوجوان کیپٹن کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ نو پرابلم۔ کرنل نے اس کی طرف مڑ کر خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر آ گیا۔ کیپٹن اس کے تعاقب میں باہر آیا تھا۔ کہیں برگیڈیئر ملہوترا نے تو اس کا دھڑن تختہ نہیں کروا دیا؟ اچانک ہی ایک سوچ اس کے دماغ میں پیدا ہوئی، اور اس کے شکی ذہن نے اس کے حق میں دلائل بھی تلاش کر لیے۔ بٹواری کیمپ کے سیکیورٹی سسٹم میں خلا رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں کسی ایسی واردات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میجر سود کی دماغی حالت اگر صحیح تھی تو اس کی اطلاع کے مطابق اسلحے کا ذخیرہ تباہ ہو چکا تھا۔ فون سنتے ہوئے کرنل بھاٹیہ کو دھماکوں اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ابھی تک اس نے کسی تخریب کاری کے گمان پر تو غور کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایس ایس بی کے اس اہم ترین تربیتی کیمپ تک دشمن کی رسائی ممکن ہوگی۔ یہاں کے فول پروف نظام میں کسی کا گھس جانا ممکن نہیں تھا۔ یہاں تو وہ تخریب کار تربیت کے لیے لائے جاتے تھے جنہوں نے پہلے دوسرے کیمپوں میں تربیت حاصل کی ہو، اور جو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نزدیک قابل اعتماد ہوں۔ اگر کوئی نیا لڑکا براہ راست یہاں آتا تھا تو کڑی چھان بین کے مراحل سے گزر کر اسے یہاں آنا پڑتا تھا۔ کرنل جو یہاں کے سیکیورٹی سسٹم کا ذمہ دار تھا، بڑا محتاط اور کایاں آدمی تھا۔ وہ ہر نئے آنے والے ایجنٹ کے ساتھ ایک طویل سفر کر کے اس کی مکمل چھان بین کر کے اور خود مطمئن ہونے کے بعد ہی اسے بٹواری کیمپ میں داخل ہونے کی اجازت دیا کرتا تھا۔ ایسی درجنوں مثالیں موجود تھیں کہ راہ کی طرف سے خصوصی تربیت کے لیے بھیجے گئے تخریب کاروں میں سے اکثر کو کرنل نے راستے میں ہی چھٹی کروا دی تھی۔ اس پر اکثر ایجنسیوں سے اس کی تو میں بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن حتمی فیصلہ بہرحال انہی کا مانا جاتا تھا، کیونکہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کوئی بھی اہلکار اپنے کسی بھی ایجنٹ سے متعلق کوئی بھی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں کسی ڈبل ایجنٹ کا گمان بھی ممکن نہیں تھا۔
कर्नल भाटिया जानता था कि कर्नल मोंगिया ने किसी पर एतबार करना तो सीखा ही नहीं था। वो हर कमरे में अपना एक जासूस जरूर रखा करता था। हर नए ग्रुप में एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर वो एक दूसरे की जासूसी पर एजेंटों को लगा दिया करता था। इंस्ट्रक्टरों की रोजाना रिपोर्ट्स का वो खुद जायजा लेता था। क्या मिजाल जो इसने किसी कैंप से मुतल्लिक ज़ैली रिपोर्ट ना पढ़ने की कोताही की हो। हर एजेंट पर इसकी नज़र हुआ करती थी और वो अचानक ही किसी एजेंट को अपने कमरे में बुलाकर इसका मुकम्मल नफ्सियाती तज्जिया कर लिया करता था। मामूली सा शक गुजरने पर किसी को मरवा देना या मार देना इसके लिए मामूली बात थी। ऐसी बहुत कम मिसालें मिलती थीं कि इस कैंप में तरबियत के लिए आने वाले ग्रुपों के तकरीबकार तरबियत मुकम्मल करने के बाद पूरी तादाद के साथ बाहर निकले हों। अमूमन इनमें से एक दो कम ही होते थे। ये वो बदकिस्मत थे जिन्हें मामूली शक पर कर्नल मोंगिया के हुक्म पर मार दिया जाता था। इनमें से अक्सर को बाकी एजेंटों में खौफो हरास पैदा करने के लिए, उन्हें अपने काबू में रखने के लिए अमूमन इनके साथियों के सामने बड़ी अजियतें देने के बाद हलाक किया जाता था। कभी कभी खौफो हरास की फिजा बनाए रखने के लिए एक एजेंट की बलि चढ़ा दी जाती थी। इन हालात में इस तकरीबकारी के क्या इम्कानात रह जाते थे। इसी सोच ने इसे गुमराह कर दिया था। ले दे के इसके जहन में एक ही नाम बार बार गर्दिश कर रहा था। ये जरूर ब्रिगेडियर मल्होत्रा का किया धरा है, क्योंकि अब वो मल्होत्रा के लिए बाकायदा मसला बनता जा रहा था। मल्होत्रा ने तवील रुखसत ही इससे किसी मुमकिना टकराव से बचने के लिए ली थी। आखिर मल्होत्रा इस खेल का इससे ज्यादा पुराना खिलाड़ी था और इसकी गैर मौजूदगी में भी यहाँ इसके वफादार और नमकख्वार मौजूद थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्होत्रा ने ही इनकी मदद से ये काम करवाया, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पहले कैसी ही हो, अब इसके लिए भारतीय आर्मी में कोई जगह बाकी नहीं बची थी। इसे जरूर जबरन रिटायरमेंट पर भेज दिया जाता। ऐन मुमकिन है अब ब्रिगेडियर मल्होत्रा इसे मरवाने की कोशिश करे। कुछ भी मुमकिन था। इसी सोच ने इसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ा दी। अगले ही लम्हे वो नौजवान कैप्टन से मुखातिब हुआ, कर्नल खेर से राब्ता करवाओ जल्दी। यस सर, नौजवान कैप्टन कहकर तकरीबन भागता हुआ दोबारा रिक्रेशन हॉल की तरफ चला गया। कर्नल खेर को तलाश करने और इसे कर्नल भाटिया तक पहुंचाने में भी इसे इन्हीं मराहल से गुजरना पड़ा था जिनसे वो पहले गुजर चुका था। कर्नल खेर तो शराब के नशे में धुत था। क्या मुसीबत है यार, इस साले को क्या हो गया। इसने अपने कोर्समेट और बेतकल्लुफ साथी कर्नल भाटिया के मुतल्लिक एक मोटी सी गाली फिजा में उछाल दी। कैप्टन दिल ही दिल में इस मुसीबत से जल्द से जल्द छुटकारे की दुआएं मांग रहा था। यस भाटिया, यार ये कोई समय है मुझे मिलने का। इमरजेंसी, समथिंग इज रॉन्ग। भाटिया के बात करने का अंदाज इतना संजीदा था कि खैर को ही बेबस होना पड़ा। इसने हस्बी आदत सर हिलाते हुए इस्तफामिया नजरों से भाटिया की तरफ देखा। मुझे फौरन एस्कॉर्ट चाहिए, यहाँ से बटवारी तक जाना मेरे लिए खतरे से हाली नहीं। इसने खेर की तरफ देखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? कर्नल खेर ने बेचैनी से दरियाफ्त किया और जवाब में कर्नल भाटिया ने इसको मुख्तसर सारी बात बता दी। ओ माई गॉड, ये कैसे मुमकिन है? बेयकीनी के लहजे में कर्नल खेर के मुंह से बेसाख्ता निकला। यही तो मेरे लिए वजह परेशानी है। इसने अपने दोस्त से कहा। ऑल राइट, मैं बंदोबस्त करता हूँ, डोंट वरी। कर्नल खेर ने अपने दोस्त की हौसला अफजाई की। अगले 3-4 मिनट बाद एसएसजी कमांडोज के 10 नौजवान 2 जीपों समेत इसकी हिफाजत के लिए तैयार हो चुके थे। गुड लक। कर्नल खेर ने इसे रुखसत कर दिया। वो कर्नल भाटिया को खुद रुखसत करने इसकी जीप तक आया था। कमांडोज ने इसकी जीप अपने दरमियान रखी थी। एक जीप इसकी हिफाजत के लिए आगे और एक इसके पीछे आ रही थी और इनमें से मुस्तैद कमांडोज किसी भी मुमकिना सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। शदीद बारिश, मुंजमद कर देने वाली सर्दी और गहरे बादलों की वजह से उन्होंने ये फासला मामूली से ज्यादा वक्त में तय किया था। कर्नल भाटिया की जीप कैंप के गेट से कुछ फासले पर रुक गई। इसने यहाँ से कमांडोज को रुखसत कर दिया क्योंकि वो अपने किसी भी दुश्मन को अपने ऊपर मजीद हंसने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। जीप जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, वहाँ मौजूद सिक्योरिटी के बुखलाए हुए नौजवानों ने इसे घेरे में ले लिया। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? कर्नल भाटिया ने ड्योढ़ी के तबाह हाल दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सर, अभी तक कुछ नहीं पता चल सका। शायद कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट या फिर कोई और कारण, एक नौजवान लेफ्टिनेंट ने कहा। कम ऑन। कर्नल भाटिया तबाह हाल दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया, जहां देहरादून से आर्मी फायर ब्रिगेडियर के नौजवान जो कुछ देर पहले ही यहां पहुंचे थे, इस ड्योढ़ी की आग बुझाने में कोशां थे। मेजर सूद यहाँ मौजूद और हासा परेशान दिखाई दे रहा था। वो भाग भाग कर हर शख्स के पास जाता और इसे हिदायत जारी कर रहा था।
कर्नल भाटिया को इस तरफ आते देखकर वो तेजी से इसकी तरफ लपका। सॉरी सर, वेरी सॉरी, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था, इसने काफी अफसोस मिलते हुए कहा। ब्रिगेडियर साहब को इत्तला दे दी? कर्नल भाटिया ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय अपना सवाल दाग दिया। वो जानता था कि कल से ब्रिगेडियर मल्होत्रा की छुट्टी खत्म हो रही है और वो देहरादून अपने घर में भी पहुंच चुका था, क्योंकि इसने आज ही सुबह कर्नल भाटिया से फोन पर हेलो हाय की थी। नॉट येट सर, मेजर विक्रम सूद ने कहा। राइट, बैरिकों की क्या पोजीशन है? इसने सर हिलाते हुए सवाल किया। अभी तक तो वो लोग सेफ हैं, मेजर सूद ने जवाब दिया। फौरन तमाम बैरिकों को घेरे में ले लो, किसी को कमरे से बाहर निकलने की इजाजत ना देना, मैं यहाँ के मामला देखता हूँ। बैरिकों में एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ था। वहाँ मौजूद हर तकरीबकार ये जानने के लिए बेचैन था कि ये धमाके कैसे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कमरे से बाहर निकल सके। वो इस बात से भी खौफजदा थे कि कहीं ये तबाही इन तक ना पहुँच जाए, क्योंकि असलहा डिपो से कुछ फासले पर मौजूद बैरक को तो जमीन बोस होते ही उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और वहाँ से अभी तक जख्मियों की चीखों पुकार की आवाजें भी आती रही थी। अब मेडिकल वालों ने शायद जख्मियों को निकालकर महफूज जगह पहुंचा दिया था। ये दोनों बैरक्स गो के खासे फासले पर थीं, लेकिन खौफो हिरास ने यहाँ भी डेरे जमा लिए थे। इनका बस नहीं चलता था कि दीवारें तोड़कर निकल जाएं। अभी इनमें चहमुगोइयां हो रही थीं जब उन्हें इस तरफ बढ़ते नौजवानों के कदमों की धमक सुनाई दी। मेजर सूद तकरीबन 50 जवानों के साथ हाथ में मेगाफोन पकड़े वहां पहुंच गया था। इसके साथ मौजूद मुस्तैद नौजवान ने दोनों बैरकों को अपने हिसार में ले लिया था और मेजर सूद ने बारी बारी दोनों बैरकों के सामने खड़े होकर मेगाफोन पर तमाम लड़कों को इत्मीनान से अपने बिस्तरों पर लेटे रहने की हिदायत की थी और हुक्म दिया था कि जब तक ऐलान ना किया जाए कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, बसूरत देगर इसके जवान बाहर आने वाले को बगैर किसी वार्निंग के गोली से उड़ा देंगे। तमाम तकरीबकार सहम कर अपने बिस्तरों में दुबक गए थे। इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम तो फेल हो चुका था, अलबत्ता इंतजामिया ने इमरजेंसी तौर पर अपने जनरेटर से कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लिया था। सुबह हो रही थी जब यह हंगामा फुर हुआ। इसी दौरान ब्रिगेडियर मल्होत्रा समेत देहरादून से फौज की 2 मजीद कंपनियां यहां तक पहुंच चुकी थीं। कर्नल भाटिया को ब्रिगेडियर मल्होत्रा के अजीबोगरीब सवालात के जवाबात देते हुए यूं लग रहा था जैसे अभी इसका दिमाग गुस्से से फट जाएगा। इसके लिए अपने आप पर काबू रखना नामुमकिन हो रहा था। पहले तो मल्होत्रा की शक्ल पर नजर पड़ते ही इसका पारा चढ़ गया था, क्योंकि मल्होत्रा ने इसका गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए 3-4 तंजिया फिक्रे इस अंदाज में इसकी तरफ उछाले थे जैसे वो इंडियन आर्मी का नालायक तरीन अफसर है और ये सब कुछ इसी का किया धरा है और अगर वो यहाँ होता तो शायद इस हादसे से बच जाते। कर्नल भाटिया खामोशी से सर झुकाए इसका तंज बर्दाश्त करता रहा। जब अर्दली ने मेजर सूद की इत्तला दी, बुलाओ, कर्नल भाटिया ने कहा। तकरीबकारी हुई है सर, मेजर विक्रम सूद ने अंदर दाखिल होने पर दोनों एड़ियां बजाकर उन्हें एहतराम देने के फौरन बाद इनकी तरफ से कोई सवाल किए बगैर कहा। व्हाट? ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने तकरीबन चीखते हुए कहा था। क्या कह रहे हो विक्रम? कर्नल भाटिया के मुंह से बेख्तियार निकला। सर, मैंने ही दोनों बैरकों की गिनती की है। कमरा नंबर 8 से दोनों लड़के सलीम और ताहिर गायब हैं, जबकि इनका तीसरा साथी मुश्ताक मुर्दा हालत में वहां मौजूद है। शायद दोनों ने फरार होने से पहले इसे गला घूंटकर मार डाला। मेजर विक्रम सूद ने मुख्तसर रिपोर्ट पेश की। डैम इट, मल्होत्रा को इसकी बात सुनकर अचानक गुस्सा आ गया था। इसने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी बड़े जोर से अपने सामने धरी मेज पर मारी थी। ओ भगवान, बेसाख्ता कर्नल भाटिया के मुंह से निकला। कम ऑन, मल्होत्रा ने अपनी जगह से उठते हुए कर्नल भाटिया को फाड़ खाने वाले लहजे में देखते हुए कहा। दोनों विक्रम के ताकुब में तकरीबन भागते हुए बैरक के कमरा नंबर 8 तक पहुंचे थे, जहां एक चारपाई पर मुश्ताक की दहशत और अजियत से फटी मुर्दा आंखें इनका मुंह चिढ़ा रही थीं। दोनों ने बारी बारी झुककर इसका जायजा लिया। साफ दिखाई दे रहा था कि इसकी मौत दम घुटने से वाक़या हुई है। लड़कों के लिए फौरन ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त करो। खबरदार, इनसे कोई बदतमीजी ना होने पाए। किसी लड़के से कोई इंक्वायरी नहीं करेगा। ये मामला सिक्योरिटी वाले खुद ही देखेंगे। कर्नल मोंगिया थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तुम खुद लड़कों का ख्याल रखो, लेकिन उन्हें ये बताना कि बिजली के सर्किट शॉर्ट होने की वजह से ये हादसा हुआ है। और हाँ, कोई खुद से जान ले तो अलग बात है, तुम किसी को नहीं बताओगे कि यहाँ क्या हुआ है। मुश्ताक की मौत की खबर या दोनों लड़कों के गायब होने की खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मेरी बात समझ गए ना? किसी को भी नहीं। इसने कर्नल सूद को बराह रास्त हिदायत दी। कर्नल भाटिया पर सख्ता की सी कैफियत तारी थी।
अभी तक मल्होत्रा ने इसकी तरफ देखने का भी तकल्लुफ नहीं किया था। एम्बुलेंस मंगवाओ और मुश्ताक की लाश यहाँ से ले जाओ। मुझे इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह तक बहरे सूरत मिल जानी चाहिए, इसने अपने साथ मौजूद लेफ्टिनेंट से कहा और कुछ मजीद हिदायत देने के बाद वो ड्योढ़ी की तरफ वापस लौट आया। कर्नल भाटिया सर झुकाए इसके ताकुब में आ रहा था। आई एम सॉरी कर्नल, लेकिन मैं डिसिप्लिन को एक लम्हे के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकता। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक तुम अपने आप को सस्पेंड समझो। अलबत्ता तुम इंक्वायरी मुकम्मल होने तक देहरादून से बाहर नहीं जा सकते। ऑफिस में पहुंचते ही इसने कर्नल भाटिया के सर पर टाइम बम चला दिया। कर्नल भाटिया को यूं लगा जैसे किसी ने पिघलता हुआ शीशा इसके कानों में उंडेल दिया हो। इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। आज जिंदगी में पहली मर्तबा इसे अपनी हजीमत का इतनी शिद्दत से एहसास हुआ था। राइट सर, इसने संभल कर एड़ियां जोड़ते हुए मल्होत्रा के हुक्म पर साथ किया। ब्रिगेडियर मल्होत्रा को सूरत हाल समझने में ज्यादा देर नहीं हुई। इसे जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये सब कुछ इन दो लोंडों का किया धरा है जो कर्नल भाटिया की हसूसी पेशकश थे। और जब कर्नल भाटिया को इस बात का इल्म हुआ कि ये सारा किया धरा ताहिर और सलीम का है तो इसने बेख्तियार अपना सर पीट लिया। इसने अपनी फौजी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ताहिर को बटवारी कैंप में बुलाकर की थी। ये सब कुछ इसने आउट ऑफ द वे किया था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस कैंप में बराह रास्त किसी सिमत से कोई एजेंट भर्ती करके भेज दिया जाए। यहाँ आने वाले अमूमन इससे पहले एक दो कैंपों की यात्रा करके आते थे। ये तो इनका जुनून था या फिर ब्रिगेडियर मल्होत्रा को नीचा दिखाने की जिद जिसने इसे तबाह करके रख दिया था। अब इसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। इसने सारी जिंदगी बेदाग गुजारी थी, लेकिन ये दाग जो इसके दामन पर लगा था, इसकी स्याही अब ब्रिगेडियर मल्होत्रा इसके मुंह पर मलने जा रहा था। काश इसने बटवारी कैंप के प्रोटोकॉल ही का ख्याल रखा होता, यहाँ के तयशुदा असूलो ज़वाबित की पाबंदी कर ली होती। इससे मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम और ताहिर ने फरार होने से पहले अपने साथी मुश्ताक का गला दबाकर मार डाला था। कर्नल भाटिया जानता था कि मुश्ताक को उन्होंने अपने सोर्स की हैसियत से इसके कमरे में रखा हुआ था और कमाल की बात तो ये थी कि वो दोनों इस हकीकत से आगाह थे। इनकी तो बात ही अलग थी। इनके किसी इंटेलिजेंस को भी मुश्ताक की असलियत का इल्म था जिसके जरिए उन्होंने अपने एजेंट अपने दुश्मन के नेटवर्क में दाखिल किए थे। दिल ही दिल पर बेख्तियार इसने अपने दुश्मनों की मंसूबा बंदी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और इस सोच ने इसे लर्जा कर रख दिया कि न जाने इनके कितने ऐसे एजेंट्स हैं जो बेनिकाब हो चुके हैं और जिनको बेखबर रखकर दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी इस्तेमाल कर रही है। अचानक इसके जहन में एक और खदशे ने सर उठाया। कहीं कामनी अग्रवाल को इन लोगों ने काबू नहीं कर लिया। अभी तक इसकी मुलाकात कामनी से नहीं हुई थी, हालांकि इसे इस वक्त कैंप में होना चाहिए था। ऐन मुमकिन था कि वो देहरादून चली गई हो। इसे याद आ गया कि आज छुट्टी का दिन था और कामनी हस्बे मामूल एक रोज पहले ही शाम को यहाँ से कहीं और चली जाया करती थी।